Yeah, am I audible? Yes, Arthik, go ahead. Yes. Hey everyone, welcome you all to the orientation of CodeChef NSUT. So CodeChef NSUT is the only competitive programming focus society that provides you a platform for peer learning and enhances your skills in this competitive world. Yeah, next. Yeah, so first you have come here, so you may get the question that what is competitive programming. So there are basic some slides here which tells you about it. That competitive programming can be defined as the mind sport or simply a programming exercise for your brain held over the internet. So basically ऐसा होता है कि जैसे तुम जेई दे के आए हो, है ना? तो जेई के अंदर जैसे तुम मॉक पेपर देते थे, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे कि भाई तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर है। तो ये भी सेम चीज़ है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तुम्हें करनी होती है साथ के साथ। एक्चुअली क्या होता है, तुम्हारे जो टेक्निकल राउंड्स होते हैं उसके अंदर कोडिंग राउंड होता है एक पहले। तो वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जिस बंदे ने कॉम्पिटिटिव अच्छे से कर रखे होते हैं देन वहाँ पे उसे एज होता है इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। ठीक है। एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग रिक्वायर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल एबिलिटी, as you are expected to come up with optimized solution for a problem and code it in the least possible time. Yeah, next. या सो व्हाई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्यों करनी चाहिए? सो जस्ट जस्ट अभी बताया कि वहाँ टेक्निकल राउंड्स होते हैं, तो वहाँ पे फिर तुम्हें एज देता है। सो यही बता रखा है लाइक मेक्स यू अ डिजायरेबल कैंडिडेट फॉर टेक जाइंट्स, पे यू वेल फॉर टेक्निकल इंटरव्यूज एंड मेक यू फास्ट एंड फोकस। ठीक है। एंड आपकी हेल्प यू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड गारंटीड ब्रेन एक्सरसाइज। या या सो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं अपने पास कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने के। ये सब लिखे हुए हैं, कोड शेफ होता है, कोड फोर्सेस होता है, टॉप कोडर होता है, लीड कोड होता है ना? और कोई भी स्टार्ट कर सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सब बिगनर स्टार्ट करते हैं और हर जगह होते हैं। लाइक तुम्हें इसके बाद स्लाइड्स में पता चलेगा, डीएसए सीरीज होती है एंड बहुत सारी सीरीज होती है जहाँ से तुम स्टार्ट कर सकते हो, एंड कोड शेफ बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उसके लिए। या नेक्स्ट। या सो कोडसेप तुम्हें एक अभी बताया, तुम्हें कोडसेप एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है कोडिंग स्टार्ट करने के लिए। एंड इसके अंदर के ये अन अकेडमी के साथ में एसोसिएटेड है, तो फिर तुम्हें वैसे ही एज मिल जाता है वहाँ के ट्यूटर्स से। एंड यही बता रखा है लाइक कोडसेप इज वन ऑफ द मेजर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म्स मेंटेन्ड बाय अन अकेडमी। among all the platforms, CodeChef is the most beneficial it is because of its coding series and video lectures of CodeChef provides. The major ones are DSA learning series that I just told you, ICPC series for beginners, intermediate and advanced too. या सो बहुत एज होते हैं कोड शिफ्ट अगर तुम कोडिंग स्टार्ट करते हो एंड हमारी सोसाइटी के साथ लिंक करोगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा, तुम्हें बेनिफिट्स भी मिलेंगे। या Yeah, now let's move on to the part for which courtship is famous for. Courtship basically conduct the contest every month, which is of long challenge, cook off, and lunchtime, which is a which provides you a good opportunity to practice and compete among the coders across the world. And their contests have their own importances. Each of the contests we will discuss in the next slides. Next. Okay, so now basically we will start with the long challenge. It was earlier of 10 days. Now it is shortened to the 3 days, and difficulty level of each question increases with each question, and logical. It basically checks you upon the logical ability to extensive use of DSA, and it is a good contest for the beginners, and it's a beginner friendly contest. Basically it is a time bound. In 3 days you have to do the questions, and it attracts about 30,000 of participants across the world. And next is next cook off challenge. It is basically a short challenge of duration 2.5 hours.
which commences every Sunday of month, like last Sunday of every month, and it has a very variety of questions which having the difficulty level for which having the very difficulty level for each question. And it's basically a short contest, so which will test your speed and accuracy. And fasting coding and more questions are required for the good rank. And basically it will give you an opportunity to boost your rank and ratings on CodeChef platform. Next. Yeah, so next is lunchtime challenge. It is also a short challenge which is basically for 3 hours and commences on the last Saturday of every month. It's a short contest in which the speed matters, and you have to do the questions in the time constraint. And then the challenge is very good for your rating skill, for your increasing the ratings and seeing about checking about on your skills. And then the contest will give you an actual atmosphere of internship and placement coding rounds which happen in your third year, or basically give you an environment for that. And CodeChef. Next. Yeah, CodeChef has various measures upon which it will evaluate its rating system, and the performance you have done in the contest is based upon. It will categorize. It was based upon your skills, and it will categorize in different categories, or basically the divisions. We have three divisions. First one is of rating that is above 2000 or 2000, and then second one is rating from 1600 to 2000, and third one is rating from below 1600, and that's how it will calculate its rating. Yeah. Hello. So now we come to the next slide. Over here, we are going to discuss the rewards and the perks which you are going to get by joining the Coach of community. And basically, you get a recognition among companies and organizations while being at this Coach of community. And there are also monetary rewards in contests such as ICPC and Google and various other coding contests. And nowadays, Coach has also like started giving out rewards through their ranks, which they conduct, like which people get through the contest, and you also feel a sense of accomplishment and achievement while being at CodeChef, as like you're learning a lot in the process. And it also helps you build up connections as you're staying active in the competitive programming community. And competitive programming, it actually gives you an edge above everyone else, as uh, as my peers have mentioned earlier. And now the last point is that it gives you an idea about the things you would be going through while sitting in the coding rounds, which are going to held, which you are going to give in your third years and fourth years for internships and placement season, during your internship and placement season. Yeah. So now is the Coach of DSA series. Like, I don't know if you are aware of DSA, but DSA stands for Data Structures and Algorithms. They are basically it's going to be a subject. It's going to be a subject in the college first year itself. But DSA is actually a very important domain in which the recruiters are going to like they're going to give your take your assessments, and like DSA is actually a very important part, as it is it's actually used in the technical round, the coding round, and then in the technical interview rounds. And CodeChef offers DSA series where expert coders or professionals are going to cover topics, important topics related to DSA, and they have prepared these videos and uploaded on in their YouTube channel. And yeah, so talking about YouTube channel, CodeChef also has their official YouTube channel where there are various DSA series, and they are also conducting interviews with experts or people who have cracked Sang. So
many of you are not aware of what FANG is, but FANG stands for like big companies such as F for Facebook, Amazon, Apple, Netflix, and Google. So that's FANG. And so experts who have cracked into have cracked these companies and are currently working for these companies, you're going to watch their interviews through their YouTube channels, and they're going to guide you in the process. That's the gist of it. And yeah, so major programming contests, which now I'm going to discuss. So basically, I've taken up I've put three coding contests. One is ICPC. You're literally going to hear this ICPC through your college life, from your seniors or from your juniors as well. I've heard a lot about it, and ICP stands for International Collegiate Programming Contest, which is an annual programming contest for university students. And a team of three students can compete across the globe, and you're actually going to give the regional round. And if you your team gets selected, then you are going to go through in the final rounds where you're going to compete among the experts. Yeah. So next is the Google Kickstart. Google Kickstart is an international programming competition hosted by Google itself, and there are several Kickstart rounds which Google conducts throughout the year, and participation is individual in this contest. Uh, the same is the case with Facebook Hacker Cup. The participation remains individual, and there's going to be multiple online rounds in this, and obviously these are very big companies which are hosting these contests, so their awards and perks would be extremely valuable. Yeah. So what is CodeChef NSUT chapter? CodeChef NSUT chapter is actually an initiative which are taken by our seniors. They have created this CodeChef NSUT chapter for the students of NSUT, so that they can bring together like uh, budding competitive coders who are actually interested in competitive coding. So CodeChef NSUT chapter is related with that. It's not only related with that, but this community also concerns with providing various other opportunities to students, and that's actually in the competitive programming field itself. So yeah. So what's our mission? So mission of CodeChef NSUT chapter is to empower students to build a robust competitive programming culture. So what we are doing right now, what our seniors and we are doing right now, is that we are organizing meetups and speaker sessions with experts, so that we can give guidance to budding coders. And we also host various contests on CodeChef platforms and on various other platforms. And basically, we are following CodeChef, so we are hosting it in the CodeChef platform. But over there, there's also the people are performing the back end work. They are doing all this contest, making questions and making editorials for that. So it involves involvement is a lot, but you can manage. It's not going to consume much of your time, but you can manage it with, as you progress. And we are also getting to interact with various other colleges. Actually, in the past few months, we have collaborated with one of the societies of DTU, and hosted a competitive programming contest. So we are actually getting to interact with various other coders like that are professionals and experts. So it's actually helping you build up the connections. So so why become a part of it? I jot down the points. There are five major points, but yeah, um, like these are as simple as that. Because we are making an impact, we are playing a very crucial role in building a competitive programming community and a community of problem solvers. And we are also building professional skills among the upcoming upcoming batch such as yours. And we are actually like
communicating and building some opportunities for you in competitive programming world. And as I've told you earlier, like it helps CodeChef chapter, CodeChef NSUT chapters and CodeChef community helps you build your network. And I'm not sure, but if you are aware that have you heard of any competitive coders who are very famous in YouTube, like have their YouTube channels and are actually guiding other coders? Like they are actually very famous and they are getting various offers from uh, various offers, like really good offers from companies, tech companies, you can say tech giants. Yeah, and the fourth point is that you get recognition for your performance. Like CodeChef, like it tries to give you we as a chapter, like there's a lot of involvement of us, so you will get a letter of recommendation opportunities, and like if your progress is very if you're progressing at a very faster rate, then you are you might also end up getting like getting a very a big role in the coach community, and you would stand, and like later on you are going to guide other junior members as well. And we have flexibility over here, so like we plan and help you that you keep up with your college, and you can also contribute to the coach community as well. So like you will get to plan. Yeah, time management is very really you can say very easy over here. Like you're not going to get not going to get hectic work. So yeah, we are open for doubts. Like if you have any doubts, not particularly in competitive programming, but also related to the college. I know that the college is going in online mode, and you have various other doubts, like how our college life will progress and all that. So we are open for doubts. I think whoever's hand is raised, we can unmute them Yeah. one by one. Yeah. Karthik, we have unmuted you. You can ask a question. Sorry, Kapil. I think we can unmute Kapil. Kapil can raise his doubt. Hello, Bia. Yes, Kapil. Should we start competitive coding from the starting, or first of all, we should do DSL Go and other things, and after first year we should start it? See, competitive, as we have told earlier, competitive programming, you should take it as a sport. It will come to you naturally. So you should start by learning basic programming. You can start with C++ or Java. I would recommend C++ or Java, not Python, because there are various libraries in Python, and we need to root learn a lot. But while you are at C++ and Java, then they help you with various other concept buildings and all. Yeah. So first you are let me give you a roadmap, simple roadmap. First, you should start by learning these languages from the basics and get your basics strong. Then you should rise to rise to a level and start learning DSA, and or you can wait because in your first year there would be DSA subject, and it's naturally going to be taught to you, and you can
get your DSA skills from there and uh, continue on the path of competitive programming. You can also like sign up on various other websites which have which are given as an example. HackerRank for say if you're a beginner, then start with HackerRank. I would recommend. Then go to LeetCode and CodeChef. Also, we have which language we should prefer, C++ or Java? See, it's totally up to you. Like, if you think you are cool with C++, then go with C++. Or if you think that you are understanding Java at a very faster pace, then you can go with that. Companies allow both, or some companies different. Yeah. See, कंपनीज को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी लैंग्वेज में कोड करते हो, आप कोड करते हो वही अच्छी बात है. एंड जावा एंड सी प्लस कंपनीज को फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी कोड किस लैंग्वेज में कोड कर रहे हो. उनको ये फर्क पड़ता है कि आप कोड कर रहे हो एंड दैट्स इट. क्योंकि आपको एट द एंड डीएसए करके इंटरव्यूज देने हैं, तो दे आर एक्चुअली एक्सपर्ट्स जो रिक्रूट कर रहे होते हैं, उनको काफी लैंग्वेजेस आती होती है. एंड सी प्लस एंड जावा दे आर प्रोफिशिएंट विद दैट. भैया फर्स्ट ईयर वाले ज्वाइन कर सकते हैं ना, सोसाइटी है. फर्स्ट ईयर के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, देन यू कैन अप्लाई. तो भैया कुछ प्री रिक्विजिट्स होती हैं, जैसे हमें लैंग्वेज में और डीएसए कमांड होनी चाहिए. प्री रिक्विजिट्स मतलब सोसाइटी ज्वाइन करने के लिए ऐसे कोई प्री रिक्विजिट्स होती नहीं है, बट आपको सीखना स्टार्ट कर देना चाहिए. इट्स गुड आप प्रोएक्टिव हो, बट यू कैन गो विद योर ओन पेस, नो वरीज. भैया एक सिंपल सा डाउट है, अगर आप कोड से हो, अगर मुझे कुछ क्वेश्चंस में जैसे कोड फोर्सेस पे अगर कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है तो आप हेल्प कर सकते हो ना कोड फोर्सेस के लिए. या सीनियर्स आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. I think. Hello. Yeah, Ravina. Yeah, I want to ask you, like, in the process, will you teach us how to code, or you want us to know coding before joining the society? It's not we are not actually expecting you to have a really great coding background and all, but it's better if you have some knowledge of it, the basic knowledge of it, what's a coding language and the basic syntaxes and all. But as for the learning part, we actually conduct SIGs and various teaching sessions. You can join over there, and you will actually we will teach you what specific languages from the beginning, or as per your request. Yeah. So is it okay if we know the basics, like एकदम basic वाला C++ का language before joining, like prerequisites में इतना is enough, So or we Pravina, should know more? recruitment एकदम से start नहीं होगा societies का, so don't worry. पहले आप college attend करो, college life enjoy करो, coding करो, and then later on जब recruitment होगा तो फिर हम आपको inform कर ही देंगे groups के through, WhatsApp groups के through. Okay, thank you. एंड मैं एक और चीज क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ. रिक्रूटमेंट जो होगा वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ चीज है, बट हम एक कम्युनिटी भी है एज अ CodeChef NECD चैप्टर. हम एक कम्युनिटी है जहाँ पर हम टीचिंग सेशंस करवाते हैं, जिसमें हम सिखाएंगे कि कैसे कोडिंग करनी है, क्या कोड करना है, डीएसए के बारे में बताएंगे, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में बताएंगे. देन हमारे स्पीकर सेशंस होते हैं जहाँ पर हम एक्सपर्ट्स बुलाते हैं फ्रॉम वेरियस कंपनीज. हमारे कॉन्टेस्ट होते हैं जिसमें हमारे खुद के स्टूडेंट्स क्वेश्चंस बनाते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव कोडिंग. सो हमारी काफी इवेंट्स होते हैं जो हर कोई कर सकता है. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हमारे जैसे एग्जीकॉम्स हैं हमारे, आप जरूरी नहीं है कि उसका पार्ट हो. आप इवन एज अ कम्युनिटी आप हमारे सारे इवेंट्स में पार्ट ले सकते हो. एंड यस, इसके लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं है. जो भी हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है, हम जो व्हाट्सएप ग्रुप्स आपने ज्वाइन कर रखे हैं उसमें सब इन्फॉर्मेशन आती रहेगी.
Yeah. So I think Keshav. हेलो Yeah. Hello. भैया, आप वो इंटरव्यू में कोड शेफ के क्वेश्चन पूछोगे, मतलब इंटरव्यू लेते वक्त रिक्रूटमेंट में? Like, Keshav, specifically हम like, ऐसे इंटरव्यूज में कोर्सेज से रिलेटेड ऐसे कोडिंग के क्वेश्चंस मतलब नहीं पूछेंगे. इफ यू मतलब हैव इट कि आपको कोडिंग आती है देन इट्स गुड. ओके सर. Yeah, But, before entering into the DSA, we need to hello? have some grip on a particular language. I would say hello? कि yeah. Can I go one by one? Yeah. So it's not like कि DSA से पहले कि कोडिंग आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, ऐसा कोई डाउट नहीं है. व्हाट्स प्रेफर्ड कि आप पहले थोड़ा सा बेसिक सीख लो कोडिंग लैंग्वेज का, कि आपको पता हो कि हो क्या रहा है. DSA इज अ डिफरेंट थिंग. एल्गोरिदम्स होती है, तो हम उसको एल्गोरिदम्स को हम अपने इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता. बट उस इंग्लिश में लिखी हुई चीजों को आप कोड में कैसे बदलोगे, वो आपका काम है. वो लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग वो आपको करनी है. तो सर ये भैया, ये पूरा लॉजिकल थिंकिंग और एल्गोरिदम ये सब एक ही पार्ट में है ना, पूरा डीएसए के अंदर आता है ना मैं ये? इतना लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग बोल रहा हूँ, तो उससे डरो मत. इतना ज्यादा टफ भी नहीं होने वाला है. यू विल गेट इट नेचुरली. जब आप कोड करना स्टार्ट करोगे तो अपने आप ही दिमाग को आइडियाज आने लग जाते हैं कि हम इसको ऐसे कर सकते तो हैं अभी या हम वैसे कर सकते कोडिंग थोड़ा थोड़ा मतलब स्टार्ट कर दें, बेसिक्स टू मॉडरेट लेवल, और उसके बाद डीएसए में मेंटर करें तो हमें ठीक रहेगा. हैं. या यू विल दिस विल बेनिफिट यू. डीएसए फटाफट से आ जाएगा अगर मॉडरेट लेवल की कोडिंग आती होगी तो. ओके, थैंक यू. Harshvardhan, you can unmute. Yes, I want to ask that I am like 5-star in hacker rank. So in Python, so should I learn DSA in Python or should I learn it in C or C++? हर्षवर्धन, लैंग्वेज का प्रेफरेंस आपका है, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि पाइथन को कॉम्पिटिटिव कोडिंग में थोड़ा सा यूज मत कीजिए, क्योंकि पाइथन के टाइम मतलब लाइक कॉम्पिटिटिव कोडिंग में ना टाइमिंग्स मैटर करती है काफी. टाइमिंग्स ऑलवेज ऑलवेज मैटर. बट पाइथन में ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो आपका काम आसान कर सकती हैं बहुत ज्यादा, बट उन लाइब्रेरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए. लाइक यू शुड बी वेल अवेयर कि ये लाइब्रेरीज ऐसे काम करती हैं. ऑन द स्पॉट किसी भी बंदे से मतलब लाइक यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि उसे सारी सारी लाइब्रेरीज एंड उसके फंक्शंस याद रहेंगे. लाइक मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करता. तो सी प्लस प्लस में यही होता है कि हम वो जो फंक्शन पाइथन का कोई फंक्शन है जो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो हम उसे हम एक लाइन में लिखते हैं पाइथन में, बट सी प्लस में वही 5 लाइन में लिखेंगे. बट वो जो हम लिखेंगे सी प्लस में वो हम खुद से लिखेंगे. अच्छा, तो मुझे सी आती है, तो मैं C++ में किस तरह मतलब सीखने में? मतलब सी अगर बढ़िया से आती है देन सी प्लस प्लस इज नॉट वेरी डिफरेंट, बट ऊप्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है. हाँ, ऊप्स आता है, मुझे ऊप्स पाइथन में आता है. देन लाइक सी प्लस प्लस ईजी होगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा करना अगर कॉन्सेप्ट्स आते हैं. ओके, और जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे कि हैस्केल है, क्लोजर है, तो उसका कुछ यूज है कि नहीं है? इन सब लाइक आई वुड से कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 या 2 लैंग्वेजेस पर ही रहो. मतलब ज्यादा 3 पे चले जाओ. बट व्हाट आई कैन से कि सी प्लस प्लस सीख लो, जावा सीख लो और एक डेवलपमेंट सी प्लस सीख लो, पाइथन सीख लो और एक डेवलपमेंट लैंग्वेज सीख लो. जैसे कि स्टैक ओवरफ्लो के डेवलपर सर्वे में आया था कि क्लोजर की सबसे ज्यादा डिमांड है, मतलब अकॉर्डिंग टू सैलरी अभी इस साल मतलब 21 में. हर्ष, लाइक दिस इज द बिगनिंग. लाइक थोड़ा धीरे पेस से चलो. मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप बहुत तेजी से चलो. इट्स गुड, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, सारी फील्ड्स को डिस्कवर करो एंड अपना इंटरेस्ट ढूंढो. मनी का मैं तो प्लान तो देयर इज नो हार्म इन एक्सप्लोरिंग. यू कैन एक्सप्लोर. एंड एज फॉर जो आपका पहला क्वेश्चन था 5 स्टार हैकर रैंक में है तो अब क्या करूं. हैकर रैंक में लाइक
5 स्टार आ सकता है इजीली. सो लाइक उसकी इतनी वैल्यू रहेगी नहीं हैकर रैंक में. या बिकॉज प्रैक्टिस करोगे तो वो अपने आप ही स्टार्स आ जाते हैं. आई वुड से कि compete करके स्टार्स जनरेट करो. लाइक अगर कॉम्पिटिटिव कोडिंग में जाना है सो ज्वाइन कोडशेफ. कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए है. एंड कोडशेफ में अपनी रेटिंग इंप्रूव करो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके. ओके कोडशेफ. लेकिन कोडशेफ के जो डीएसए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. Yeah. Harsh, like you can contact me through the WhatsApp group, but like now like there's a lot of doubt and everyone like everyone has their doubts, so like let me take up on other ones. Yeah. Amey, can you unmute yourself, Amey? Hello. Hello. Yeah. Amey? Yeah. I wanted to ask कि आपने बोला कि पहले कोई लैंग्वेज सीखे फिर डीएसए शुरू करे एंड फिर जाए ना हम कॉम्पिटिटिव कोडिंग में. Yeah, like that's the path. सारे यही path लेते हैं and ये काफी लॉजिकल मतलब या बेसिक से एडवांस सीखे हम. लैंग्वेजेस लाइक यू कैन आप यूट्यूब से सीख सकते हैं या काफी सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड होते हैं. बट अगर असिस्टेंस चाहिए तो लाइक यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली. आई विल टेल यू इट. मतलब मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे लाइक व्हाट्स द रोड मैप, कैसे सीख सकते हो. मतलब मुझे C++ के बेसिक चीजें तो आते हैं पर लेकिन पूरी तरह से नहीं आता. पूरी तरह से नहीं आता तो लाइक यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस हैं. काफी सारे कॉम्पिटिटिव कोडर्स बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली मतलब बिगिनर फ्रेंडली टॉपिक्स कराते हैं. तो आप वो बिगिनर फ्रेंडली टॉपिक्स कीजिए एंड धीरे धीरे करके एडवांस कीजिए. ओके. बट अगर कोई और असिस्टेंस चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली. मैं व्हाट्सएप के थ्रू डाउट सॉल्व कर दूंगा. ओके. थैंक यू. सो लाइक Agastya, can you unmute yourself? Am I audible? Yes. Yes. So I wanted to ask that I had started with DSA, and I have started working with macros, and my basic concepts are all clear, but I don't just have the most polished algorithms. So would it be ideal for me to just step into competitive coding and learn through that? Agastya, see, what competitive coding is, it's not very different from DSA. DSA are just concepts, and competitive coding is the competitive part of it, where you are competing like with the various other coders. So practice can make you perfect over here. Like you should do plenty of practice, and then like, you will automatically get that ideas of building various algorithms. Perfect algorithms, what you are talking about. So I just have to keep practicing if my basics are clear. So yeah, actually, no end to this. What I can say कि competitive coding is just like mathematics. जितनी ज़्यादा practice करोगे उतनी ज़्यादा आ जाएगी. मतलब मैथ्स के क्वेश्चन भी ऐसे होते थे कि एकदम स्टार्टिंग में करोगे तो काफी टाइम लोगे. तो यहाँ पर भी वही होता है. Yeah. So Yash Garg. Yash. What is the difference between your society and ASN society, Bhaiya? See, all these computer all these societies related with algorithms and coding, like they are all the same. इनकी communities होती हैं, you can join them. And actually जो मैंने अभी contest की बात की ना, आपको peers मिल जाते हैं.
कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। लाइक यू गॉट माय पॉइंट कि आपको वैसे लोग मिल जाएंगे जो आपके साथ लाइक जो आपके लेवल के होंगे कोडिंग में। लाइक इफ यू आर ऑन अ वेरी गुड लेवल, ऑन अ वेरी गुड स्टैंडिंग, तो आपको अपनी स्टैंडिंग जैसा एक और पीयर मिल जाएगा, एंड देन यू कैन फॉर्म अ टीम एंड पार्टिसिपेट इन वेरियस अदर कॉन्टेस्ट। तो आप खुद भी सीखते हैं, उन्हें भी सिखाते हो। पीयर लर्निंग, लाइक दैट्स ऑल अबाउट कम्युनिटी। आप एएसएन सोसाइटी लीजिए, कोडशेफ सोसाइटी लीजिए, एक ही बात है, ज्यादा फर्क नहीं है। बट कोई भी सोसाइटी लोगे तो उसमें यू शुड वॉलंटियर, लाइक काम करना है, पार्टिसिपेशन एक्टिव होना चाहिए। दैट्स इट। Okay, Bhaiya. And generally, how many days, how many years or months does it take to become a 5-star or 7-star coder at CodeChef? See, like this is a very मतलब काफी पर्सनल सा क्वेश्चन हो गया। हर एक के लिए पर्सनल होता है। मतलब Can you give an कुछ approximate की range? Yeah, बोलो भाई। अप्रोक्सीमेटली, लाइक आई कैन नॉट आंसर दैट अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मतलब 1 महीने में ही बन गए थे 5 स्टार, लाइक 2-3 कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और 5 स्टार कोडर। एंड कुछ लोग ऐसे भी है जिन्हें 1 साल लग जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो आपकी लर्निंग फेज पर है कि आप कितनी जल्दी जल्दी चीजें सीख रहे हो। Okay, Bhaiya. And I'll come back to the question of ASN और CodeChef में क्या डिफरेंस है। बेसिकली आप जो भी सोसाइटीज देख रहे हो, अभी बहुत सारी सोसाइटीज आएंगी, बहुत कुछ बोलेंगी। सो आप ये देखो कि वो सोसाइटीज कर क्या रही है, एंड आपको कहाँ पर क्या अच्छा लगेगा ज्यादा। सो जैसे ASN आपको कुछ एल्गोरिथम्स के बारे में बताएगी, कुछ और सेशंस करेगी। CodeChef ऑन द अदर हैंड करेगी टीचिंग सेशंस, स्पीकर सेशंस, कॉन्टेस्ट। तो आप ये देखो कि आपका फिट कहाँ पर बैठ रहा है। एंड आप मल्टीपल कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एंड एज आई सेड बिफोर कि CodeChef कम्युनिटी सबके लिए खुली है। हम जो भी कॉन्टेस्ट करेंगे, जो भी स्पीकर सेशन रखेंगे, जो भी टीचिंग सेशन रखेंगे, उसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है। Okay, Bhaiya. Yeah, last question. If I'm very interested in competitive coding and I imagine I do competitive coding and I become a 5-star coder in maybe 1 year or something, if I add this to my resume, will the companies actually care? Yes, Or will they they do. be जो I can speak from a very personal point of view. अभी जो हुए हैं internship season जो अभी गया है, in that most of the companies they when they look at your resume and they see something like a 5-star coder on a CodeChef or a really high rank on Codeforces, तो उन्हें actually दिखता है कि you have actually that kind of a coding background, and उनको पता चलता है कि you have some kind of experience in coding and competitive programming, and you can handle the workload जो वो company देगी। Okay, Bhaiya. Thank you. Bye. Thank you. Yeah. We can have Rajat. Rajat. एंड हार्दिक, एक डाउट और क्लियर कर देते हैं। सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं भाई इसमें। बहुत बहुत बार इश्यूज आते हैं। Yeah, actually, second year is like as Kaustubh sir said, मतलब it's open for all, so it's open for all. First year, second years, and if third year wants, like third year को आना है तो वो participate कर सकते हैं। Good afternoon, Bhaiya. Yeah. Bhaiya, I'm basically novice in all these things. So how much time will it take me to learn all the languages from the scratch? Provided See, that I Rajat, have a don't very get dedicated disheartened. person. Yeah, first, don't get disheartened that you are a novice. Like we all started as a novice. Like आपको like इतना ज्यादा आप कॉलेज लाइफ एंजॉय कीजिए, सोसाइटी ज्वाइन कीजिए, पीयर्स के साथ बातें कीजिए, मतलब और काफी सारी चीजें, एंड कोडिंग भी साथ में कीजिए। कोडिंग में क्या होता है कि वो आपको एट द एंड वही आपको प्लेसमेंट और इंटर्नशिप दिलाएगा। बट जैसा मैंने कहा कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग इज डिफरेंट। कॉम्पिटिटिव कोडिंग उनके लिए होती है जो काफी बढ़िया बढ़िया कोडर्स हैं, एंड जिनको प्लेसमेंट लेनी है, लाइक वो जरूरी नहीं कि वो कॉम्पिटिटिव कोडर्स ही होंगे सारे जिनको प्लेसमेंट लेनी है। ऐसा कुछ नहीं है, पहले तो ये मिसकंसेप्शन हटा दो।
वो सारे कॉम्पिटिटिव कोडर्स होंगे जो प्लेसमेंट लेंगे। आपकी स्किल्स मैटर करेंगी एंड आपकी जो प्रोफाइल है वो मैटर करेगी एट द एंड, जब आप इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स के लिए जाओगे। तो इतना ज्यादा सीरियस लेने की कोई बात नहीं है एंड आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए कोडिंग करना। जिस लेवल पे पहुंचेंगे वो बहुत बड़ी बात है, यू हैव अचीव्ड दैट, बट परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रखना। Thank you so much, Bhaiya. Yeah. We can have Tejas Raj. हेलो हेलो तेजस। भैया आई वांटेड टू आस्क कि मैंने कोडिंग 11th में पाइथन में करी थी थोड़ी बहुत, अपनी बेसिक्स ऑफ पाइथन आई नो, और 12th में मैंने छोड़ दी थी, तो 1 ईयर से मैंने मतलब ज़्यादा कोई कोडिंग करी नहीं है। तो नाउ इफ आई एम स्टार्टिंग अगेन, तो शुड आई स्टार्ट फ्रॉम पाइथन और शुड आई स्टार्ट फ्रॉम C++? फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड योर पाथ, बट लाइक पाइथन अच्छी लैंग्वेज है क्योंकि वो डेवलपमेंट में भी यूज होती है एंड वो कोडिंग में भी यूज हो सकती है, कॉम्पिटिटिव कोडिंग में। बट जनरली कॉम्पिटिटिव कोडर्स पाइथन यूज नहीं करते हैं क्योंकि टाइम का इशू आता है जनरली। बट एंड पाइथन में काफी ज्यादा चीजें हैं रटने के लिए, तो वो भी है। बट अगर कोई और लैंग्वेज सीखनी है तो यू कैन स्टार्ट विद दैट, एंड इफ यू वांट टू स्टिक टू पाइथन देन पाइथन से शुरू कीजिए, क्योंकि अब लाइक 11th-12th वाली लाइफ नहीं है कि अब PCM पे ध्यान देना है। अब तो लाइक you all are doing engineering, then you can concentrate on software technology. तो भैया अब जैसे हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में C लैंग्वेज आएगी, तो हमें C++ सीखनी चाहिए या फिर C? What I should say कि C++ सीख लीजिए, C पे स्टिक मत रहिए, क्योंकि C मतलब पुरानी लैंग्वेज है as it is, and C++ उसका अपग्रेडेड वर्जन है। एंड C++ में और भी काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, oops है, एंड वो भी काफी काम आता है बाद में। तो भैया कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए सीखना? मतलब मुझे C++ के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है। ओके, आप लाइक यूट्यूब चैनल्स को रेफर कर सकते हैं, प्लेलिस्ट, एंड करना ये सारा खुद ही पड़ेगा क्योंकि आपको कोई स्पून फीड नहीं करेगा इसके लिए। बट अगर कोई एडवाइस चाहिए तो वो ले सकते हो हमसे, एंड टीचिंग सेशंस हम रखेंगे बीच में कि कैसे कोडिंग करना है, कैसे स्टार्ट करना है, और क्या रोड मैप होना चाहिए। तो ये सब बाद में SIGs करेंगे हम, बाद में टीचिंग सेशंस करेंगे तो वहां पर सिखाएंगे। बट रिलाई ऑन योरसेल्फ, खुद ही मेहनत कीजिए। यूट्यूब पर सारा कंटेंट मिल जाएगा, यूट्यूब पर ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं मिलेगा, जो भी सर्च करोगे वो आ जाएगा। काफी सारे कोडर्स ने अपनी प्लेलिस्ट बना रखी है, उनको रेफर कीजिए या फिर मुझसे पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा कौन सी प्लेलिस्ट है। ठीक है भैया। We can have Rishabh Sharma. हेलो हेलो भैया, मेरा नाम ऋषभ है। लाइक मैं कोडिंग काफी टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैं जावा में करता हूँ भैया। तो पहले तो ये बता दीजिए कितना गलत कर रहा हूँ। लाइक सही है जावा से कोडिंग करना, मतलब कॉम्पिटिटिव सही कोडिंग है करना? ऐसे गलत मतलब मैं C++ के बारे में ज्यादा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं C++ में करता हूँ। बट जावा, जहां तक मुझे लगता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए जावा इज ग्रेट। हाँ, मुझे मैंने जावा बहुत सीखा अच्छी है। लगी, लेकिन मेरा 3 स्टार हो चुका है सर आपके कोड शेफ वाले प्लेटफॉर्म पे। लॉन्ग चैलेंज में भी मैं बैठा हुआ हूँ। तो भैया मुझे बस ये लगा कि यार मैं कहीं कुछ लाइक, क्योंकि फोमो होता है ना कि और सारे लोग C++ में करते हैं, मैं जावा में करता हूँ। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कोई है। दिक्कत नहीं आएगी? लाइक आगे नहीं कितना कोई हेल्पफुल दिक्कत होगी? नहीं आएगी। मुझे बताया कि इंटर्नशिप के व्हाट टाइम पे भी ना C++ को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ऐसा बोला किसी ने, ऐसा है क्या? C++ को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बट
what I would say, Java सीख रहे हो, it's good. And like अभी सेमेस्टर में तुम्हें इसी साल में फर्स्ट ईयर में तुम्हें सी भी सिखाएंगे, तो सी भी सीख लेना, एंड उसके साथ साथ सी मतलब सी तो क्लासेस में सिखाएंगे, अच्छा ऐसा so you कर दो can भैया, start like learning मेरे the को C++. ये अच्छा ये मैं कर सकता हूँ क्या कि मैं ऐसा करूँ जैसे जावा में सीख रहा हूँ तो वो अपना सीखता रहता हूँ और साइड बाय साइड सी प्लस प्लस पे भी काम करूँ, क्योंकि मेरे को जावा आ गई है, ढंग से आ गई है, मैंने प्रोजेक्ट भी बनाए काफी सारे और मैं अब डीएसए पे आ चुका हूँ, लिंक लिस्ट ये सारे जो होते हैं ना एडवांस डाटा स्ट्रक्चर्स, इन सब पे आ चुका हूँ मैं। तो मैं अगर मैं like you can do that way. Yeah. अच्छा दोनों लैंग्वेज सीखना कोई गलत बात नहीं है ना, साइड बाय साइड नहीं नहीं, कोई गलत बात क्योंकि नहीं मुझे सी प्लस प्लस आती है I know समझ में, people तो मेरे- जिनको अभी भी काफी सारी लैंग्वेजेस आती हैं, 5 6 7 8। अच्छा जैसे मतलब मेरे को ना सी प्लस प्लस समझ में आती है, आप मुझे कोड दोगे मैं अपने जावा में हाल ट्रांसफर कर दूंगा उसे सेकंड्स में। Okay. तो Okay. तो So मैं like I think you have a pretty good knowledge about coding. मतलब coding तो background से भैया हो, लाइक तो और हाँ आपके रिक्वेस्ट क्या है सर, आपकी सोसाइटी को मुझे अगर ज्वाइन करना है भैया तो फिर मतलब मेरे पास स्किल्स तो है, मैंने प्रोजेक्ट भी जावा में काफी बनाए हैं, उस पे मतलब कोडिंग भी काफी टाइम नहीं बोलूंगा बट है, नॉलेज है, वेब डेवलपमेंट की भी काफी नॉलेज है। तो भैया आपकी सोसाइटी को ज्वाइन करने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या मैं कैपेबिलिटी रखूं, क्या होना चाहिए मेरे पास? हेलो मतलब as in capability नहीं चाहिए, but you can say कि like you are interested, that's what हाँ मतलब हाँ यही मैं मैटर तो हूँ, करता मैं तो है। काफी इंटरेस्टेड हूँ आप भैया, सीपी तो बहुत वॉलंटियर टाइम से करोगे, कर रहा हूँ। एक्टिव मेंबर रहोगे, कम्युनिटी में एक्टिव रहोगे, like you अच्छा discuss, peer learning करोगे, दूसरों को भी सिखाओगे, खुद भी सीखोगे, like वो कर रहा हूँ भैया, लाइक that's all. मैंने कुछ 5 स्टार 6 स्टार बंदों से बात करी है, जैसे इन जो मैक्सो हैं वहाँ के डीटीयू के, उनसे भी कल बात करी थी मैंने। सॉरी टू इंटरप्ट, बट और काफी बच्चों के डाउट्स हैं, आप मुझे भैया पर्सनली आपसे मैसेज कर पर्सनल में देना, व्हाट्सएप पे मैं पूछ सकता पर्सनली हूँ क्या भैया? या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ओके थैंक यू भैया, थैंक यू। So I would say कि काफी सारे doubts हैं, and like we are going like we were actually planning to keep this session till 3:30 because other societies also have their orientation as well. So like but It's fine, we can like continue. जिसको भी IGTS वाले में जाना हो वो जा सकते हैं, अगर उनके डाउट्स फिनिश हो चुके हैं तो वो भी लीव कर सकते हैं। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिसका भी डाउट हो चुका है वो अपने हैंड लोअर कर दें ताकि पता रहे कि कितने लोगों को डाउट्स बचे हैं। एंड एक बार चैट्स भी पढ़ लें, उसमें काफी लोगों ने काफी सारे डाउट आंसर कर दिए, सो इन केस आपका डाउट ओवरलैप कर रहा हो सो प्लीज ना पूछें। Okay, Kushagra Mishra, you can unmute. Am I audible? yes Yes, sir. yes Shagir. Yeah, I want to know, is this society a paid society? Like, do we have to give some? No no Kushagra, No, it's paid not. society नहीं है, Coursera is not a paid society, but ये पेड सोसाइटी तो है ही नहीं, मतलब पहले तो ये मिसकंसेप्शन निकाल दो। एंड कोडशेफ जो है, आई नो आपको ये डाउट कैसे आ रहा है, कोडशेफ इज अ ग्लोबल कम्युनिटी, मतलब ग्लोबल कम्युनिटी है, अन अकेडमी रन करता है, इनिशिएटिव है, एंड हमने उसी का एक चैप्टर एनएसयूटी में खोल रखा है, छोटा सा, सो वी कैन क्लब ऑल आवर मेंबर्स टुगेदर। Thank you. Yeah, we can have Harish unmute. Hello, Yeah, am I audible? yes Harish. Yeah, right now I have two doubts actually. So the first one is right now we are learning C as part of our computer science subject. All right. So should we, like, if I go ahead and learn C++ by myself for coding, like what should I Yeah, do that exactly? would Should be I great. finish C by Yeah, myself, that would or be great. no? Should I finish C I first think by you should myself go and with then that. go to C++, or Go with C++. Like if you are starting right now and learning, जैसे college सिखा रहा है C,
एंड आप उसी के साथ सीख रहे हो तो C++ भी सीख लीजिए साथ में. Okay. And the second one is like I have no basics at all like for C++, Java and all. I've only learned a bit of Python when I was in 11th and 12th. So if I start off right now, like after doing the basics, what should the exact route be? Like after doing the basics, directly go to HackerRank and start. What I would say, बेसिक्स सीख लीजिए पहले कि कोड कैसे करते हैं एंड देन गो टू हैकर रैंक. हैकर रैंक पे ना प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे काफी सारा, बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक, तो Okay. उसे प्रैक्टिस करो, Okay. वो हेल्प करेगा काफी. एंड जब आपको लगे कि अब मेरा हैकर रैंक पर काफी हो गया, देन मूव ऑन टू अनदर साइड. कोड शेफ पर आ जाओ या लीड कोड एंड वेरियस अदर, बहुत सारी है. So is joining CodeChef more than enough for competitive programming, like the practice and all? या आई वुड से कि कॉम्पिटिटिव ऐसा नहीं है कि आपने सोसाइटी ज्वाइन कर ली या कम्युनिटी ज्वाइन कर ली तो आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग आ जाएगी. एंगेज होना पड़ेगा. Okay. यू शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट, मतलब एक्टिव रहना पड़ेगा एंड करना पड़ेगा. कोडिंग कोडिंग करने से आती है, ज्वाइन करने से तो कुछ नहीं होगा. या आई थिंक हरीश डाउट सॉल्व हो गया होगा आपका. Yeah. Thank you so much. So you can call Pankaj. Yeah, Pankaj. Yes, I have a doubt that if I have learned CPP Okay. and some sort of DSA, I'm interested in DevOps and open source contribution. So what should I have to do? Okay, so like I'm sure that आप अगर open source में interested हो तो GitHub तो सुना ही होगा. Yes, yes, yes. Yeah, GitHub सुना होगा, तो वहाँ पर like you can contribute over there. And DevOps में interested हो तो you should work towards like WebD सीख लीजिए, normal WebD सीख लीजिए and then वहाँ से DevOps की तरफ बढ़िए. Yeah. What is the difference between software and DevOps? See, DevOps में DevOps is actually related to like आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ. वेबसाइट बना लिया आपने एक, हमने एक वेबसाइट बना ली, खुद से कोड कर लिया एंड देन अब आप उसको होस्ट कर रहे हो या उसके अंदर आप लाइक यू आर एक्सचेंजिंग डेटा एंड कुछ ऐसा कर रहे हो जिसके अंदर यू आर वर्किंग विद लाइक नेटवर्किंग. दैट्स सो उस चीज में आपको लाइक दैट्स द वर्क ऑफ डेवऑप्स इंजीनियर, जहां पर आपको डेटा को भी हैंडल करना है एंड साथ ही साथ डिप्लॉयमेंट एंड बाकी सारे टास्क देखने हैं बैक एंड के. One thing that I want to ask you from that in India, the FAANG companies are overhyped than what it is in India. Yeah, actually, like I don't know like if most of you are aware of this fact, but like मैं इसे डिस्क्लोज करना नहीं चाहता क्योंकि काफी लोग डिसहार्टन हो जाते हैं ये सुन के कि फैंग कंपनी को काफी ज्यादा एक ओवरफुटिंग दे रखी है, काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा रखा है. तो मैं ये मतलब काफी सारे लोग डिसहार्टन हो जाते हैं, तो ये ऐसी बात पब्लिक में मैं करता नहीं, बट या दैट्स ट्रू कि ऐसा होता है. So what regarding to this you will advise to me? See, अभी तो आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लाइक एंटर करोगे कॉलेज में प्लेसमेंट उठाने के बाद, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाओगे, देन वो तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा एंड जितना अच्छा आप करते होगे उतना अच्छा आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा. वहां से आपकी जर्नी खुद ही बढ़ती जाएगी. नो नीड टू वरी अबाउट दैट. काफी सारे लोग ऐसा ही करते हैं एंड ऐसा करने में कोई गलत बात नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि अगर आपको और बढ़िया करना है तो स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए. अच्छा, ओके, थैंक्स यू.
So yeah, we can have Fatima. Hello. Yeah. Hello. आई वांटेड टू नो दैट जो बेसिक बिगिनर्स हैं, बिल्कुल अभी आपने कहा आप एसआईजीज वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उन्हें ज्वाइन करने का क्या प्रोसीजर होता है? सी आप व्हाट्सएप ग्रुप से एडेड हैं, जैसे आपने यहाँ पे एंटर करे वैसे ही लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे व्हाट्सएप के थ्रू ग्रुप्स पे। ओके, टाइमली इन्फो मिलती रहेगी उसके लिए। या ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट इज आदर्श। आदर्श हेलो। या हेलो एम आई आदर्श। ऑडिबल? यस भैया, यार मुझे ये जानना था कि जैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में अगर मैं अच्छा कर लेता हूँ तो मतलब ये इंटरव्यू राउंड्स में मतलब मैं कितने राउंड आसानी से मतलब हैंडल कर सकता हूँ? सी आदर्श अभी ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सब मैंने बताने के लिए बोला था, बट इस चीज की अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसके लिए गाइड कर दिया जाएगा आपको। लाइक जब आपका टाइम आएगा ना, व्हेन यू वुड बी इन सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आओगे, तो आपको ऑलरेडी सीनियर्स बता चुके होंगे अपने एक्सपीरियंसेस। नो नीड टू वरी अबाउट दैट। और भैया यार एक और डाउट था, जैसे ना अभी मैंने सी प्रोग्रामिंग खत्म किया है, मतलब एक यूट्यूब चैनल है कोड विथ हैरी, वहाँ से तो या मैंने उनकी बेसिक प्लेलिस्ट मतलब जो जितना था वो सारा अटेंड कर दिया। फिर मैंने कोड शेफ पे मतलब कुछ बिगिनर जो प्रैक्टिस लेवल क्वेश्चन होते हैं वो किए थे। तो उसमें ओके क्वेश्चन था जिसमें बूस्टर लाइब्रेरी का कुछ कंसेप्ट यूज हो रहा था, बट मैंने वो मतलब कहीं नहीं पढ़ा था अभी तक। अब मैंने किसी से पूछा था, बट उन्होंने बोला कि अभी ऐसे नहीं पता चलता और अभी इग्नोर कर दो। तो मतलब इन सब के बारे में कैसे पता चलेगा, आप कुछ बता सकते हो? सी आदर्श, इन सब के बारे में मैं इन जनरल पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में आंसर नहीं कर सकता, बट ये बता सकता हूँ कि अगर ऐसे टफ क्वेश्चंस को काउंटर करना है, तो मतलब अगर चाहते हो कि ऐसे टफ क्वेश्चन हम भी सॉल्व कर पाए, जैसे टफ क्वेश्चन से आमना सामना हो, तो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते रहो, ऐसे काफी सारे टफ क्वेश्चन आएंगे। लाइक मैं अगर मतलब इन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करूंगा तो तभी मतलब इन सब के बारे में सीख पाऊंगा? इन सब के बारे में सीख नहीं पाओगे, मतलब कॉन्टेस्ट से ना, लाइक कैसे बताऊं कि बचपन से एग्जाम देते हुए आ रहे हो, तो एग्जाम जब भी तुमने देखा कि एग्जाम देते हो, तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सब्जेक्ट बेटर हो जाती है। हाँ। तो कॉन्टेस्ट भी एक एग्जाम जैसा ही होता है। अच्छा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाता है कॉन्टेस्ट देने के बाद, एंड काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ना एक और चीज जरूर करना, ये बच्चे सब गलती करते हैं कि जो तुम्हारे क्वेश्चंस रह गए जो तुम नहीं कर पाए, एक बार उन्हें जरूर देखना जाके फिर से। लाइक गूगल पे या हमेशा मिल जाएंगे तुम्हारे इसके सॉल्यूशंस, तो एक्चुअली इन्हें एक जब बार कॉन्टेस्ट देखना खत्म हो जरूर जाता है ना, कि तो बचे हुए क्वेश्चंस के ना एडिटोरियल्स आ जाते हैं, सॉल्यूशन आ जाते हैं। हाँ यस उनको एक यस। बारी उनसे हिंट ले लिया। ओके। और भैया जैसे आपका ये जो सोसाइटी का रिक्रूटमेंट आप अभी करोगे, तो मतलब उसके लिए अभी कितना टाइम है हमारे पास कि मतलब खुद को प्रिपेयर कर सके या कुछ एक्स्ट्रा कर सके हम? सी आदर्श, एज इन यहाँ पर लाइक इट्स फर्स्ट टाइम इन एनएसयूटी, तो यहाँ पर ना अभी लाइक पढ़ाई का पढ़ाई करनी पड़ती है यहाँ पे, है ना। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में आ गए एंड अब पढ़ाई से नाता तोड़ दिया। नहीं तो वो यहाँ सब तो पे मतलब वो सब काफी पता बिजी है। रहते हैं, लाइक हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, बट लाइक अगर आपको लगता है कि स्किल्स इंप्रूव करनी है, यू कैन इम्प्रूव। हाँ हम यहाँ बेसिकली पर लाइक हेलो, या यस यस। बेसिकली अभी चिल मारो, अभी तुम आए हो कॉलेज में, अभी एक्सप्लोर करो। अभी ऐसे प्रिपेयर वगैरह करने की इतनी जरूरत है नहीं, अभी थोड़ा आराम से एक्सप्लोर कर लो, देख लो, पता चल जाएगा। सही में, अभी मतलब हम जो अभी फॉर्म्स इंटर्नशिप वगैरह प्लेसमेंट का डालेंगे। टेंशन ना लो, वो बाद में जब टाइम आएगा तो यू विल गेट टू नो। ओके भैया, ओके भैया, थैंक यू। या ठीक है ना, साहिल साहिल काबरा।
Hello, am I audible? Yes, Sahil. Yeah, I just wanted to ask exactly what is the recruitment process like to join this CodeChef community? Like, what exactly is the process? I'm not clear on that. साहिल प्रोसेस इतना ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होने वाला। लाइक हम 2-3 दिन पहले बता देंगे रिक्रूटमेंट का, मतलब 2-3 दिन नहीं, मतलब 5-6 दिन पहले ही आ जाता है, फॉर्म्स आ जाते हैं। एंड जनरली हर सोसाइटी का यही होता है, जनरल सोसाइटी जितनी भी सोसाइटी है सिटी में, हर सोसाइटी का ये होता है कि फॉर्म पहले दे देते हैं एंड देन आप अपने फॉर्म वगैरह उस हिसाब से भरते हो। कभी कभार लाइक दे डू शॉर्ट लिस्टिंग एंड देन फिर इंटरव्यूज वगैरह होते हैं। अभी के Form लिए as in like टेंशन मत लो, अभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में रहो, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। okay, and also tentatively, मतलब when do these processes happen? These forms and all of that. Around what time? सी अभी कम्युनिटी में हो, बिकॉज जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में हो उसका मतलब आप कम्युनिटी में हो। मैनेजमेंट पोजीशंस के लिए जो आगे आएगा एज पर रिक्वायरमेंट, जब भी सारी सोसाइटीज करेंगी अराउंड उसी टाइम पे होंगे सारे रिक्रूटमेंट्स, सो तब बता देंगे हम उसी व्हाट्सएप ग्रुप्स पे। अच्छा, ओके, थैंक यू। एंड सिर्फ कोडिंग के बेसिस पे रिक्रूटमेंट नहीं होते हैं, बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, लाइक मार्केट पीआर होता है एंड तुम्हारा ग्राफिक होता है, तो उस चीज में भी तुम अप्लाई कर सकते हो। और कोडिंग बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, अभी तुम फर्स्ट ईयर हो, हम तुमसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि तुम्हें बहुत अच्छी चाहिए। हम भी फर्स्ट Alright. ईयर रहे तो हमें पता है कि कैसा होता है, कितना चाहिए होता है। सो ऐसी टेंशन मत लो कि बहुत एक्सपर्ट बनना है तुम्हें कोडिंग में इस सोसाइटी में आने के लिए। बेसिक्स पता कर लो, थोड़ी जनरल नॉलेज होनी चाहिए, मतलब वो तो हो ही जाएगी हर किसी की। बट ऐसा नहीं है कि हम एक्सपर्ट चाहते हैं, हम 5 स्टार चाहते हैं, हम 2 स्टार चाहते हैं, ऐसा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, ओके, ऑलराइट, थैंक यू। I think we can have Dhruv Garg. Am I audible? Yes, Dhruv. भैया मुझे ये पूछना था कि इलेक्ट्रिकल के जो बच्चे होते हैं उन्हें इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है टेक कंपनीज में, एंड लाइक मिलती है तो देन हाउ शुड दे स्टार्ट कोडिंग एंड स्टफ? See, Dhruv, opportunities काफी मिलेंगी। Like, you should have that skills कि आप grab कर सको। ओके, एंड तो भैया मतलब इलेक्ट्रिकल के बच्चों को स्टार्ट कैसे करना चाहिए कोडिंग के लिए? कोडिंग के लिए लाइक ऐसा नहीं है कि सबके लिए अलग अलग रोड मैप होता है, सबके लिए एक ही होता है। एंड जनरली बेसिक से स्टार्ट करो एंड देन मूव ऑन टू एडवांस वन, एडवांस पे चले जाओ। मतलब यूट्यूब से स्टार्ट कर दूं? एंड जरूरी ही नहीं कि सिर्फ सबको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना है। लाइक कोर ब्रांचेस को भी एक्सप्लोर करो, और भी काफी फील्ड्स होती हैं, उसको एक्सप्लोर करो। मैं ये नहीं कह रहा कि कोडिंग बिल्कुल ही भूल जाओ, लाइक कोडिंग भी आनी चाहिए, हर फील्ड में कोडिंग की जरूरत पड़ती है। ओके, मतलब मिलती है ना अपॉर्चुनिटीज, ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं हाँ, मिलेगी? अपॉर्चुनिटीज लाइक मिलेंगी, बट लाइक स्किल्स भी होनी चाहिए। ओके, और भैया जैसे यहाँ पे जैसे एनएसयूटी में कोडिंग की बहुत सारी सोसाइटीज हैं, तो मतलब आप थोड़ा ब्रीफ दे सकते हो कि मतलब टोटल कितनी है, और मतलब थोड़ा जैसे ग्रुप बहुत सारे हो गए हैं फोन में तो समझ नहीं आ रहा, कभी किसी से मैसेज आता है कभी किसी से। या ब्रो, मुझे पता है कि काफी सारे ग्रुप ज्वाइन कर लिए होंगे तुमने, ऑलमोस्ट सारे ही कर लिए होंगे सोसाइटीज के। कोडिंग सोसाइटीज के बारे में मैं Yes. इन जनरल काउंट नहीं जानता कितना है, बट काफी है। किसी एक में भी घुस जाओ और वहां पर सिंसियरली काम करो। ओके, एंड भैया जैसे सर्स जो फर्स्ट ईयर में जैसे बुक्स का पीडीएफ भेज देते हैं, तो बुक खरीदनी चाहिए या उस पीडीएफ से ही प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए? सी अभी लाइक मैं अपना बता देता हूँ, मैं पीडीएफ से पढ़ता हूँ, मैं बुक नहीं लेता। मैंने फर्स्ट से लेके थर्ड सेमेस्टर निकल गया, मैंने बुक नहीं पढ़ी, मतलब मैंने बुक ली नहीं, मैं इस पीडीएफ से पढ़ता था। ओके ओके, बट थैंक अगर यू। आपको ज्यादा जानना है, कोर के बारे में और पढ़ना है, तो बुक ले लो। ओके ओके, आपके क्लब में कोई इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं सेकंड थर्ड ईयर के? हाँ, काफी सारे। ओके, थैंक यू।
Yeah, we can have Parth Bhatia. हेलो Hello, Parth. हेलो भैया हेलो Yes, Parth. भैया मैं इसी ब्रांच से हूँ भैया मैं थोड़ा कहना था भैया मेरे पास 11th 12th में भी कंप्यूटर नहीं थी और मैं अब कॉलेज में आया हूँ तो कॉलेज में जो सर हैं वो सी सिखा रहे हैं तो मैंने सर्च वगैरह किया तो जितने मेरे सीनियर्स हैं उन्होंने मुझे यही बताया कि आप C++ से शुरू करो या सी सारे सीनियर सी प्लस प्लस इसलिए कहेंगे क्योंकि सी प्लस प्लस का एक्चुअल यूज होता है, सी का यूज नहीं होता, किसी भी इंडस्ट्री में नहीं होता, आउटडेटेड लैंग्वेज है। ओके भैया तो भैया हमने मैं भी C++ सी से पढ़ी शुरू थी। कर चुका हूँ लाइक सी एंड सी प्लस में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, सिंटैक्स सेम ही रहेगा, ज्यादा से ज्यादा फंक्शन चेंज हो जाएंगे और थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाएंगी, उस पर ध्यान रखना। एंड ऊप्स ओके का भैया कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो भैया मुझे एक चीज पूछनी थी मैं भी बिगिनर ही हूँ मुझे 1 हफ्ता या 2 हफ्ते ही हुए हैं C++ को सीखते हुए तो भैया अब जैसे मैं कहीं से बात करता हूँ कोई वेब डेवलपमेंट सीख रहा है कोई ऐप डेवलपमेंट सीख रहा है तो भैया मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं थोड़ा होपलेस हो जाता हूँ कि मैं भी सिर्फ सीख ही रहा हूँ और आर्थ, लोग वेबसाइट बना रहे व्हाट आई हैं शुड ऐप से कि बना रहे तुम हैं अभी गलत ग्रुप में हो। तो थोड़ा सा रिलैक्स करो, अभी फर्स्ट ईयर में हो एंड अभी अभी तुम्हारा सेशन शुरू हुआ है, 5 ही दिन यस हुए भैया होंगे कॉलेज आए हुए, 5 ही दिन हुए ना। यस भैया यस भैया हाँ, तो अभी थोड़ा रिलैक्स करो, चीजें अपने आप ही समझ में आने लग जाएंगी, इतनी ज्यादा टेंशन मत लो, ना किसी के साथ कंपैरिजन करना है, अपने पेस पे चलना है और जो करना है बढ़िया से करना है। तो भैया पहले C++ अच्छे से सीख लूं इसमें क्वेश्चंस लगा लूं फिर हाँ धीरे धीरे आगे अपने आप चीजें या खुलती जाएंगी हाँ हाँ ओके भैया थैंक यू भैया या वी कैन हैव प्रांशु कुमार। प्रांशु ओके, सो नेक्स्ट वी कैन हैव महर्षि सोलंकी। Hello. हेलो या Okay. Ma'am, what is the recruitment process for this? Because I missed that part. ओके, सो महर्षि, ऐसा लाइक कैन आई कॉल यू ऋषि? Yes. ओके, सो सी रिक्रूटमेंट प्रोसेस की भी टेंशन मत लो, व्हाट्सएप ग्रुप पर हो, वहीं पर ही एक्टिव रहो, मैसेजेस देखते रहो, इंपॉर्टेंट मैसेजेस मिस मत करना, वहां पर ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस से सारी डिटेल्स आ जाएंगी। इमीडिएटली नहीं होगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, देन विल फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देंगे हम फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स पर। Okay, भैया. Thank you. सो वी कैन हैव दिव्यम। Hello. भैया, am I audible? Yes, Devin. यस प्रांशु, सॉरी भैया, पिछली बार में मेरा माइक ओके खुल ओके नहीं रहा प्रांशु, था. ओके ओके मेरे में थोड़ा डिस्टरबेंस आएगा तो वो थोड़ा मैनेज कर लेना. मैं थोड़ा मतलब बाहर चल ओके रहा था. या नो तो प्रॉब्लम। मैं पूछ रहा था इसमें फर्स्ट ईयर वाले इसमें एनरोल कर सकते हैं, मतलब इस सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं कोड शेफ को? यस, फर्स्ट ईयर्स के लिए लाइक जनरल रिक्रूटमेंट अभी फॉर्म्स निकालेंगे, देन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एंड जो भी कॉलेज का पार्ट है एनएसयूटी का, वो सारे फॉर्म भर सकते हैं। या सो एंड लाइक सेकंड थिंग, जैसे मैंने अभी मतलब कुछ स्पेशली स्टार्ट नहीं किया है, जैसे मेरे को भी सी मैम ने करवाना शुरू करा है, तो मैं सी और मतलब ये जावा भी स्टार्ट करूंगा, तो मतलब उसके लिए कुछ अभी खास क्वालिफिकेशन चाहिए फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए?
क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं है अभी सोसाइटी ज्वाइन करने के लिए, बट जनरल नॉलेज होनी चाहिए। जितना क्लास में पढ़ा रहे हैं, सी लैंग्वेज सिखा रहे हैं, तुम सी प्लस हाँ सीख रहे हो या ठीक है, जावा सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, वो आना चाहिए बेसिक बेसिक। ठीक है। और इसके मतलब एनरोलमेंट स्टार्ट कब से होंगे? उसकी अभी कोई फिक्स डेट नहीं है। ओके, थैंक यू भैया। या सो वी कैन हैव दिव्या। भैया 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 एम आई Yes. ऑडिबल? हाँ यस दिव्या। भैया मैं जैसे ना फर्स्ट ईयर में हूँ, तो मुझे ना अभी कोडिंग और लैंग्वेजेस के बारे में मतलब बिल्कुल भी मतलब बेसिक नॉलेज भी नहीं है मुझे। ओके तो मैं अब कैसे आगे प्रोसीड कर सकता हूँ मतलब सीखने के लिए? अगर बेसिक पूरी नॉलेज नहीं है तो पहले तो स्टार्ट करो कि एक लैंग्वेज सीखो। अभी कॉलेज में भी तुम्हारा भी है फर्स्ट सेमेस्टर में सी नहीं लैंग्वेज? भैया, अभी अभी नहीं है, अभी नहीं है। अच्छा, फिर वो नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा। तो कुछ नहीं होता नेक्स्ट सेमेस्टर का। अगर तुम वेट नहीं कर, या तो वेट कर लो या फिर अभी से स्टार्ट कर दो। धीरे धीरे करके सीखना शुरू करो, बहुत टाइम में सीख लोगे। C++ से स्टार्ट करना। या सी प्लस प्लस या जावा कुछ भी करना है। भैया सी प्लस प्लस के लिए सी की मतलब नीड है पहले सीखने की? नहीं नहीं नहीं, ओके भैया। सी की नीड नहीं है, सिर्फ C++ से स्टार्ट कर सकते हो डायरेक्ट। ओके भैया। और भैया अभी ये सोसाइटी के लिए मतलब कैसे प्रोसेस होगा ज्वाइन करने का? ग्रुप पे इन्फॉर्म कर देंगे जब फॉर्म्स आएंगे ना। ओके, थैंक यू भैया। सो वी कैन हैव अजय, अजय कुमार। हेलो हेलो अजय। हेलो या यू Yes, आर Ajay, ऑडिबल। audible. हेलो यस अजय। हेलो, आप सुनाई दे रहे हैं भैया? यस हाँ अजय। भैया आई एम करेंटली डूइंग C++ for competitive Okay. programming, but in future I have to do app development. Yeah. So should I switch to Mhm. Java in future, or we are suitable in C++? Okay. So अजय लाइक आई एम नॉट श्योर, लाइक जावा में तो होगा, जावा में डेवलपमेंट होता है, ऐप डेवलपमेंट होता है। क्योंकि हाँ सुटेबल फॉर या जावा अच्छा होता है डेवलपमेंट के। हाँ जावा कॉटलिन एंड और लाइक यू कैन लाइक गो टुवर्ड्स फ्लटर। फ्लटर फ्लटर। में या फ्लटर को एक बारी एक्सप्लोर करना, वरना फिर लाइक जावा एंड कॉटलिन लाइक ये सारी चीजें हैं, ये तो कर ही सकते हो। देयर इज तो नो हार्म। C++ से जावा में स्विच करने में टाइम लगता है या फिर नहीं? नहीं वैसे मैं नहीं, अपने टाइम नहीं पर्सनल लगता। एक्सपीरियंस से बताता हूँ। जब तुम एक दो या तीन कोडिंग लैंग्वेजेस सीख लेते हो ना, तो उसके बाद से ना तुम्हें एक पैटर्न सेट हो जाता है तुम्हारे माइंड में। लाइक हर कोडिंग लैंग्वेज में ना वही सेम पैटर्न रिपीट होता है। ओके भैया, तो हमें जावा में स्विच करना चाहिए कि नहीं? लाइक ऐप डेवलपमेंट के लिए जावा कर लो, बेटर है। एंड ओके, फ्लटर को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो फिर फ्लटर अगर इज हम आल्सो जावा देयर। करेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा C++ के कॉन्सेप्ट्स थोड़े फेड आउट हो नहीं नहीं, जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं होता। प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं होगा? देखो हर आउट ऑफ जगह पे ना, प्रैक्टिस रहोगे तो थोड़ा सा हार्म है, बट नहीं होगा। हर जगह पे लैंग्वेज में बस सिंटैक्स होता है, लॉजिक हर जगह सेम रहते हैं, तो ओके फर्क नहीं पड़ता। तुम बस C++ का सिंटैक्स आता है ना, और वो जावा के सिंटैक्स में चेंज कर दोगे, लॉजिक सारे सेम रहेंगे। भैया, और इस बार अगर आपको इंटर्नशिप्स का थोड़ा नॉलेज हो तो इलेक्ट्रिकल वालों को अपॉर्चुनिटीज मिली थी थोड़ी सी भी? यस, इलेक्ट्रिकल वालों को मिलती हैं अपॉर्चुनिटीज। बस भैया बहुत है, थैंक यू। या वी कैन हैव खुशी। Hello, am I या audible? खुशी। यस। Okay, so Bhaiya, my first question is, after joining the society, what are the benefits? Like, what exactly we are going to do in the society? या फॉर दैट लाइक एक्चुअली मैनेजमेंट का काम होगा। एंड लाइक आपको ना अलग अलग टीम्स में काम करने को मिलेगा। लाइक यू कैन आइदर चूज ग्राफिक डिजाइनिंग, और लाइक यू कैन चूज कॉन्टेस्ट, जहाँ पर आप कॉन्टेस्ट बनाओगे दूसरों के लिए।
और यू कैन गो टुवर्ड्स टीचिंग, SIGs कंडक्ट कर सकते हो। और लाइक पहले खुद सीखोगे एंड देन जब तुम लाइक सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में आ जाओगे देन इट्स अप टू यू, सिखा सकते हो दूसरों को, इट्स नॉट अ बिग डील। तो काफी सारी चीजें होंगी। Okay, okay. And my इसके में दो second पार्ट्स question. इसके में दो पार्ट्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक है यू आर अ कम्युनिटी मेंबर इन कोडचेफ एनएसयूटी, या यू आर अ एक्सिकॉम मेंबर व्हिच इज एन एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर ऑफ कोडचेफ एनएसयूटी। सो कम्युनिटी मेंबर हो तो यू विल हैव थिंग्स लाइक टीचिंग सेशंस, जहाँ पर हमारे सीनियर्स या कोई बाहर से कोई एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और वो किसी टॉपिक के बारे में सिखा रहे हैं हमें। देन होंगे कुछ स्पीकर सेशंस। स्पीकर सेशंस में क्या होगा, यू विल हैव इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो फेसबुक में काम कर रहे हैं, गूगल में काम कर रहे हैं, ऐसी कंपनीज में काम कर रहे हैं, वो आके कुछ बताएंगे अपने बारे में या कुछ कैसे रिक्रूटमेंट होता है, किसी भी ऐसे टॉपिक के बारे में वो बताएंगे। देन देयर विल बी कंटिन्यूअस कॉन्टेस्ट हमारे खुद के जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं, वो बनाएंगे। देन दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कम्युनिटी मेंबर्स को अवेलेबल है। एज एन एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर यू विल बी ऑन द अदर साइड ऑफ थिंग्स। इसमें तुम सेशंस ऑर्गेनाइज करने में हेल्प कर रहे हो, टीचिंग सेशंस खुद होस्ट कर सकते हो या फिर उसकी हेल्प कर सकते हो बनाने में कि कैसे होगी टीचिंग सेशंस, किसको बुला रहे हैं, कब बुला रहे हैं। सो वो सब ऑर्गेनाइजिंग वाला पार्ट हो गया। एंड कॉन्टेस्ट में क्वेश्चंस खुद बना रहे हो। सो दिस इज व्हाट एग्जीक्यूटिव कमिटी विल डू। एंड रिक्रूटमेंट सिर्फ Okay. एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर्स के लिए होगा, कम्युनिटी के लिए हर किसी के लिए खुला है। सो ऑल ऑफ यू जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में हो वो ऑलरेडी कम्युनिटी में है। ओके एंड भैया सेकंड क्वेश्चन था कि क्योंकि हमारे पास 11th-12th में थी, हमने पाइथन पढ़ी थी और अभी मैंने कॉलेज स्टार्ट होने से पहले C++ का बेसिक्स किया एंड अभी मैंने DSA स्टार्ट कर दिया, लाइक 1/3 हो चुका है। एंड मैंने अभी रिसेंटली कोडशेफ का जो होता है चैलेंज वगैरह उसमें लाइव पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें सिर्फ लाइक 1 या 2 क्वेश्चन हो पाते हैं। सो ऐसा लगता है कि क्या हमसे क्यों नहीं हो रहे भाई क्वेश्चंस, और सेम स्टार वाले बच्चे कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर कुछ हेल्प। हेलो खुशी, या कोडशेफ में इफ यू आर अटेंडिंग टू कॉन्टेस्ट, तो व्हाट आई वुड से कि जो भी कॉन्टेस्ट करते हो और जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं ना, उसका एक बार सोल्यूशन भी देख लिया करो बाद में। लाइक सोल्यूशन ऐसा नहीं है कि खोला और देख लिया, ऐसे मत करना। लाइक पहले फर्स्ट हिंट देखो, उसके बाद फिर ट्राई करो क्या तुम कर पा रही हो। ओके, लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? इसको आई थिंक बीच में ब्रेक हो गया था, फिर से रिपीट करोगे एक बार? हाँ, सो आई वाज सेइंग कि वही कि बस कोडशेफ के जब हम चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो क्वेश्चंस जब पहले बनते नहीं है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, लाइक सो टू उसके लिए इम्प्रूव। एज हार्दिक वाज सेइंग एडिटोरियल्स देख लो बाद में। पहले कोशिश करते रहो खुद से, बिकॉज हाँ कोडशेफ के कॉन्टेस्ट में टाइम कम होता है। सो सारे मतलब अच्छे से सोच नहीं पाते, बहुत बार होता है कि आंसर स्ट्राइक नहीं करता दिमाग में इवन दो आता हो ठीक से। यस सो यस, हाँ। थोड़ी देर सोचो अपने आप से, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं होता तो एक बार एडिटोरियल को देखो, एडिटोरियल से थोड़ा आइडिया लो एंड फिर खुद से कोड करने की कोशिश करो। एडिटोरियल का भी कोड सीधे मत दिल ले लेना, पहले एडिटोरियल देख लो, उसका लॉजिक देख लो एक बार, फिर से कोड करने की कोशिश करो। एंड हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर उसका कोड देख लो एंड समझ लो कि कहाँ पर गलती हो रही है। एंड फिर आगे के कॉन्टेस्ट में उसमें इजी हो जाता है। ओके, तो लाइक अगर मैं इफ आई कीप लाइक प्रैक्टिसिंग एंड गिविंग लाइक दीज चैलेंजेस, सो आई विल इम्प्रूव, राइट? Even if I am like slow catcher or a fast learner, that doesn't depend. हाँ डेफिनेटली। Okay, okay. Thank you. Krishan Kumar, you can unmute.
Babli, Dev, you can unmute. Hello, am I audible? Yes, you're audible. एक्चुअली मेरा डाउट ये है कि मैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स डिपार्टमेंट से हूँ, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट है वो प्रोग्रामिंग में ही है। तो अगर मैं अपनी प्रोग्रामिंग अच्छे से कर लेती हूँ तो फिर क्या मुझे टेक कंपनीज में अलाउड होगा? ऑन कैंपस अभी कुछ कह नहीं सकते बिकॉज ये जो ब्रांच है वो लास्ट ईयर ही बनी है एंड इन लोगों के लिए अभी प्लेसमेंट्स चालू नहीं हुए हैं। सो ऑन कैंपस कुछ कह नहीं सकते, बट ऑफ कैंपस डेफिनेटली अगर प्रोग्रामिंग पसंद है, प्रोग्रामिंग अच्छे से कर रहे हो तो ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ओके ओके। Dev, you can unmute. Anshul, you can unmute. Hello. Yes, you're audible. Bhaiya, I wanted to ask that what is DS and competitive programming? Because I have done basic Python programming in 11th and 12th, and I don't know much about it. ओके, सो डीएसए एंड सीपी के बारे में अगर ज़्यादा जानना है तो यू कैन सी कोडशेफ की जो कोडशेफ का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसमें एक डीएसए सीरीज है, उसमें जान सकते हो और डीएसए के बारे में एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में काफ़ी वीडियोस हैं उधर, सो उसके वीडियोस देख लो, उसके बारे में सब कुछ जान जाओगे। ओके, तो वैसे मुझे स्टार्ट किससे करना चाहिए? जैसे ये पहले मतलब डीएसए या किससे फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? पहले लैंग्वेज हो गई, लैंग्वेज के बाद फिर डीएसए की तरफ जा सकते हो एंड उसके बाद फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। थैंक यू भैया। ओके, Sudeep, you can unmute. वॉइस ब्रेक हो रही है सुदीप। डू यू वांट टू आस्क इन चैट? चैट में भी पूछ सकते हो क्वेश्चन। हेलो, अभी आवाज आ रही है क्या भैया? हेलो। हाँ, पूछो। एक्चुअली भैया जैसे कि आपने कहा कि कोडिंग एक बार सीखने के बाद हमें जो प्रैक्टिस करनी चाहिए कोड फोर्सेस से, तो एक बार क्या मतलब जो यूट्यूब का पूरा प्लेलिस्ट देखने के बाद करना चाहिए कि मतलब आफ्टर वन लर्निंग वन कॉन्सेप्ट यू शुड गो टू द कोड फोर्सेस समथिंग लाइक दिस? ओके, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स होते हैं। जो मोस्टली जो सारे लोग करते हैं वो ये है कि एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट सीख लिया, जैसे एक पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सीख लिया, से स्ट्रिंग्स, तो स्ट्रिंग्स के बारे में फिर वो क्वेश्चंस करेंगे। आफ्टर लर्निंग स्ट्रिंग्स दे विल डू मल्टीपल क्वेश्चन स्ट्रिंग्स के ऊपर एंड देन दे विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर। तो ऐसी लर्निंग मोस्टली करते हैं सब लोग। बाकी डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू लाइक लर्निंग इट। मतलब अगर इफ यू विश टू डू सारे डेटा स्ट्रक्चर्स एक साथ, उसके बाद फिर if you want to say solve one particular question using different data structures, तो वो भी कर सकते हो। It's up to you, but prefer ये करो कि एक एक data structure सीखो suppose and उसके बारे में फिर questions करो। ओके भैया, समझ गए, थैंक यू। फाइव मिनट्स बचे हैं, सो जिनके भी हैंड्स रेज्ड हैं वो या तो चैट्स में पूछ सकते हैं क्वेश्चन अपना, बाकी ट्राई करेंगे जितना भी हो सके अभी हम पूछ लें। सो देव, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग पूछ सकते हो अभी। ओके, मूविंग ऑन, केशव। Can you hear me? Yes, you're audible. Am I audible?
So I was saying that I am currently doing iOS development with Swift language, if you know. So should I continue with iOS development, or should I try my hand in Android as well? That's up to you. You can go either ways about it, but what nowadays the industry prefers is that you know a language which is cross-platform. So Flutter is obviously the number one choice for most people out there right now. But if you are really good at what you're doing right now, if you are confident that this particular iOS development will take you far, then you can stick with it, or you can go for Android. It's up to you. But it's better to learn something which is cross-platform and which will be able to cater to multiple companies instead of just one. Okay, thank you. Thank you. No problem. Pranshu, you can unmute. हेलो यस भैया, फिर से मेरे को एक डाउट था, मतलब सारी लैंग्वेजेस में फंक्शंस याद करने होंगे? जैसे मैंने अगर 2 या 3 लैंग्वेज सीखी तो मतलब जितनी लैंग्वेज सीखे उसमें सबके फंक्शंस याद करने होंगे, फिर मतलब जैसे वो प्रोवाइड हो सकते हैं, मतलब जैसे फंक्शंस याद करने होंगे, मतलब जितने भी होते हैं मेनली। ओके, सो फर्स्टली 2-3 लैंग्वेज सीखना जरूरी नहीं है, किसी भी एक लैंग्वेज में कमांड कर लो वो काफी है। बट जो भी जैसा कोड कर रहे हो, इंटरव्यूज वगैरह में आपको याद रखने पड़ेंगे सारे फंक्शंस। सो कोई भी फंक्शन होगा, इंटरव्यूअर आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप वो फंक्शन के बारे में देखो उसके बाद कोड करो। सो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन है। एंड अभी तो जस्ट स्टार्ट करा है, बाय द टाइम तुम इंटरव्यूज के लिए जाओगे तब तक तुम्हें याद हो जाएंगे सारे, क्योंकि तुम इतनी बार प्रैक्टिस करोगे, इतनी बार देखोगे, अपने आप याद हो जाएगा। सो उसकी टेंशन मत लो। और भैया, और एआई के यहाँ पे इंटर्न्स लगते हैं, मतलब एआई के कुछ स्पेसिफिक इंटर्न्स जैसे रोबोटिक्स में? ऑन कैंपस नहीं आएंगी कंपनीज इस सब की। ऑन कैंपस मोस्टली सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आते हैं। सॉफ्टवेयर मतलब जैसे इंजीनियर, सीएसएआई ब्रांच है, उनके लिए कोई मतलब स्पेशल वो नहीं है, जैसे मतलब एआई से रिलेटेड कुछ इंटर्न्स? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है भैया, थैंक यू। ओके, रजत, यू कैन अनम्यूट। हेलो, Yes, am I Rajat. audible? Yes. भैया वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कुछ वेबसाइट बता दीजिए, जैसे ऑनलाइन सीखते सीखते। ओके, हैकररैंक, कोडशेफ, कोडफोर्सेस, लीड कोड। बिगनर से भैया क्वेश्चन किस पे मिलेंगे? हैकररैंक। ओके, थैंक यू। ओके, सी माइनर, यू कैन अनम्यूट। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस, यू ऑडिबल। भैया मुझे एक चीज़ पूछनी है, जैसे कि मैं अभी इलेक्ट्रिकल का फ्रेशर हूँ, तो मेरे मैं हैकररैंक 4 स्टार कोडर हूँ और कोडशेफ का भी 2 स्टार हूँ। तो दिक्कत क्या है कि मैं अभी डीएसए पढ़ रहा हूँ, करंटली ट्रीज पढ़ रहा हूँ। तो लेकिन जब मैं कोडशेफ पे कॉन्टेस्ट दे रहा हूँ ना, तो सिर्फ 2 से 3 प्रॉब्लम हो रहे हैं। और मतलब जो भी मैंने अभी स्टार लाए हैं वो सारे वही क्वेश्चन है जो मैंने पहले पढ़ रखे, जैसे कि एरेज वगैरह वाले क्वेश्चंस। तो मैं ये सोच रहा था कि कॉन्टेस्ट रेगुलरली अभी दूं या फिर पहले पूरा डीएसए एंड करूं, तो मतलब कैसे करूं मैं? साथ साथ देते रहोगे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अच्छा ही है। सो साथ में देते रहोगे तो पता चलता रहेगा तुमको कि तुम्हारी कितनी प्रोग्रेस हो रही है एंड कौन से डेटा स्ट्रक्चर में तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है। सो सपोज तुमसे रेगुलरली ट्रीज के क्वेश्चंस नहीं हो रहे अगर कॉन्टेस्ट में, तो तुम्हें पता है कि तुम्हें ट्रीज पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। सो ये करते रहो। एंड जैसे पहले बताया था कि एडिटोरियल्स देखो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। सो वो करते रहो लगातार, इससे तुम्हें पता चलता रहेगा कि तुम्हारी कितनी प्रोग्रेस है। और भैया जो कोड शेफ के जो सिर्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम से वही इजी मीडियम वाली करी है, वो भी 5-6 करी है, तो वो करनी चाहिए या सिर्फ कॉन्टेस्ट दे, लॉन्ग कॉन्टेस्ट दे, शॉर्ट कॉन्टेस्ट दे? प्रैक्टिस जितनी करो उतनी अच्छा है। सो ये जरूरी नहीं कि सिर्फ कोडशेफ से करो, काफी प्लेटफॉर्म से सबसे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से ही अच्छा होगा। तुम ये समझो कि जैसे तुम एग्जाम के लिए पढ़ते हो, तो एग्जाम से पहले तुम प्रिपेयर करते हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो। सो ये एग्जाम से पहले के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, एंड जो कॉन्टेस्ट है उसको एग्जाम की तरह मानो।
ओके ओके, मतलब आपके अकॉर्डिंग मतलब कि साथ साथ डीएसए और मतलब उसको कंटिन्यू रखो और इसके ये भी मतलब देता रहूं, इसको छोड़ो ना मतलब। प्रेफरेबल यही है, बट हर किसी का अपना स्टाइल होता है, तो देख लो। उस पे कुछ रेटिंग पे प्रेफरेबल फर्क यही तो है नहीं कि पड़ेगा? रेटिंग और स्टार मतलब उस पे रेटिंग में कुछ इम्पैक्ट तो नहीं आएगा उसका? रेटिंग इवन इफ तुम्हारी थोड़ी सी गिर भी जाए रेटिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। जब कंपनीज आएंगी उन्हें बहुत इस पे ज्यादा फोकस नहीं होगा कि तुम्हारे कितने स्टार्स हैं, उनका इस पे फोकस होगा कि तुम उस वक्त वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो जो वो दे रहे हैं या नहीं। ओके ओके ओके, मतलब प्रैक्टिस ठीक है भैया, मैं समझ गया, मैं कंटिन्यू रखता हूँ मैं। या ओके। ओके चेतन, यू कैन अनम्यूट। Hello, am I audible? यस यू ऑडिबल। भैया मैं CSDS ब्रांच से हूँ, तो मैं सिर्फ डेटा साइंस की उस जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता हूँ सर? नहीं नहीं, जो अभी वैसे कुछ कह नहीं सकते बिकॉज नई ब्रांच आई है एंड अभी तक तुम्हारे लिए प्लेसमेंट सीजन या इंटर्नशिप सीजन आया नहीं है। बट जैसे मेरे वाले बैच में CSAI था, नया था तब, वो फर्स्ट टाइम था। CSAI को सारी वो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं जो COE वालों को या बाकी ब्रांचेस को जो कंपनीज चाहती हैं वो मिली है। सो वो कंपनीज को लिस्ट दे देते हैं कि हमारे पास ये ब्रांचेस हैं, एंड देन कंपनीज बताती हैं कि हमें कौन सी ब्रांचेस को अलाउ करना है या नहीं करना। इसमें हमारे कॉलेज का कोई हाथ नहीं होता, कंपनीज डिसाइड करती हैं। बट मोस्टली कोई भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच को सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी एज जो सॉफ्टवेयर डेवलपर वगैरह बाकी COE ब्रांचेस को मिल रही है या बाकी किसी ब्रांच को मिल रही है। ओके भैया, और अगर मेरे को मशीन लर्निंग में जाना हो तो उसके लिए पर्टिकुलरली जॉब्स आती हैं कॉलेज में, या बाहर से ऑफ कैंपस कुछ ट्राई करना पड़ेगा? ऑफ कैंपस ही ट्राई करना होगा, ऑन कैंपस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स ही आती हैं मोस्टली। अभी तक तो कोई आई नहीं है जो AI वगैरह से रिलेटेड हो स्पेसिफिक। कुछ ऐसी ओके, आती और हैं उसके लिए जैसे अप्लाई जैसे रिसर्च इंटर्न वगैरह कुछ आती हैं फ्रॉम, जैसे सैमसंग थी, उस वो रिसर्च इंटर्न लेके गई है, बट उसके लिए भी उन्होंने DSA वगैरह ही पूछा था इंटरव्यूज। ओके भैया, और उस फिर अगर ऑफ कैंपस अप्लाई करना है ML के लिए, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है? जॉब ओपनिंग्स ढूंढो, इंटर्नशिप ओपनिंग्स ढूंढो एंड उस पर अप्लाई कर दो। ओके भैया, थैंक यू। कि और ये जिसने भी वियर्ड सा नाम रखा है इंजीनियर भाई, वो पूछ सकता है। हेलो भैया, मेरी आवाज आ रही है? या पूछो। मैं ना अभी फर्स्ट ईयर ECM स्टूडेंट हूँ। मैंने अभी तक C++ कर रखी है, मतलब प्ले लिस्ट पे, और मेरे को पाइथन बेसिक्स आते स्कूल लेवल पे, और MySQL और HTML और CSS भी थोड़ा बहुत। तो मेरे को कैसे तरफ जाना चाहिए, मतलब पहले मैं C++ के बाद और क्वेश्चंस करूँ या फिर डायरेक्ट DSA पे जाके क्वेश्चंस करूँ? अगर C++ अच्छे से आती है, जो भी लैंग्वेज है वो अच्छे से आती है, तो फिर DSA चालू कर सकते हो। अगर नहीं आती तो फिर थोड़ी और ब्रश अप करो स्किल्स उसमें और फिर DSA पे जाओ। C++ क्या मैं फिर प्रैक्टिस कर लूँ, हैकर रैंक या फिर इनफिनिट कोड? हाँ, कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर लो। ओके भैया, थैंक यू। आई थिंक अभी सबके डाउट्स हो चुके हैं। किसी को कुछ पूछना हो लास्ट तो पूछ लो, बट आई थिंक मीट का टाइम खत्म होने वाला है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। सो चेतन अनम्यूट कर सकते हो। यस चेतन अनम्यूट कर सकते हो। हेलो यस चेतन। भैया, जॉब इंटरव्यू के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है? काफी कुछ इंपॉर्टेंट होता है, बट फर्स्टली कोडिंग बहुत जरूरी है बिकॉज हर इंटरव्यू में बैठने से पहले वो एक कोडिंग राउंड लेते हैं जिसको पास करना पड़ता है। अगर कोडिंग राउंड पास करोगे तो ही इंटरव्यू होगा। सो उसके लिए तुम्हें वही जैसे एक कॉन्टेस्ट टाइप होगा, मतलब हर कंपनी अपना एक कॉन्टेस्ट रखेगी वैसे सब मान लो। एंड अगर उसमें तो जैसे उन्हें 50 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट करने हैं, तो जो टॉप 50 होंगे उनके इंटरव्यूज होंगे। ओके भैया, तो मतलब बेसिक कोडिंग प्लस DSA, बस इतना ही होता है? हाँ, DSA कुछ कंपनीज CP स्पेसिफिक भी होती हैं, बट मोस्टली सारी कंपनीज बस DSA में अच्छी कमांड चाहती हैं। अगर तुम्हारा अच्छा कमांड है DSA में तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं।
ओके भैया, और किसी ने मतलब मशीन लर्निंग भी कर रखे है तो उसको कुछ प्रेफरेंस मिलती है या ये इम्पोर्टेंट नहीं है वो? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इंटरव्यूज में तुम थोड़ा उसके बारे में बताओगे तो लोग इंटरव्यूअर्स को अच्छा लगेगा। ओके, तो मतलब बेसिक प्रोग्रामिंग प्लस डीएस से ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से ग्रास्प कर लो तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हेलो, 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 हाँ चेतन, यू आर ऑडिबल। भैया मैं ये पूछ रहा हूँ, सिर्फ बेसिक प्रोग्रामिंग प्लस डीएससी पे अगर आप अच्छी कमांड कर लो तो वो काफी होता है। हाँ मतलब अभी एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट तो अभी डीएस से करो, और साथ के साथ सीजीपीए भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि कोडिंग टेस्ट और इंटरव्यूज तो बाद में होंगे, पहले सिलेक्शन ही होता है कि आप एक कॉन्टेस्ट में भी बैठ पाओगे या नहीं, तो उसके लिए तो सीजीपीए मैटर करता है। और तो सबसे पहले तो सीजीपीए, और अभी के लिए सीजीपीए प्लस डीएस से। ओके, देन सेकंड और थर्ड ईयर में आके कुछ प्रायोरिटी हाँ चेंज सेकेंड होंगी? ईयर, हाँ अभी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर डीएस से अच्छे से करो, फिर सेकंड ईयर में आके डेवलपमेंट साइड पे मूव करना टू गेट यू प्रोजेक्ट्स, बिकॉज प्रोजेक्ट्स रियली मैटर्स इन इंटरव्यू, बिकॉज जो भी आपका इंटरव्यू होगा वो पूरा डीएस से बेस्ड नहीं होता। जितना कंपनी ने सेट कर रखा है कि ठीक है एक दो क्वेश्चंस पूछने हैं वो पूछेंगे, उसके बाद आपका रेज्यूमे सिलेक्शन होता है, फिर रेज्यूमे पे देखा जाता है कि अच्छा प्रोजेक्ट है तो उसके ऊपर डिस्कशन होता है, तो उसके बाद फिर जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा तब डेवलपमेंट में मूव करना, whether it will be like ML or web development or app development, it will be your choice. ओके, तो एमएल और वेब डेवलपमेंट में चॉइस होती है या दोनों कर सकते हैं? नहीं, वो आपके ऊपर है, कोई भी कर सकते हो जिससे आपको प्रोजेक्ट मिल जाए अच्छा सा, जिसपे आप एक्सप्लेन कर सको कि आपने क्या किया है इन योर इंटरव्यूज। ओके, और भैया वैसे फिर बहुत ज्यादा हैक्टिक नहीं हो जाएगा, बिकॉज कॉम्पिटिटिव भी करनी है, एमएल भी करना है, और ये सब फिर सोसाइटी भी हो रही है और क्लास भी चल रही है। वो साथ के साथ ना, अभी तो नए आए हो ना, तो अभी ऐसा लग रहा होगा कि मतलब स्कूल से अभी आए हैं डायरेक्ट, तो अभी ऐसा लग रहा होगा, लेकिन चलते चलते अभी एक दो महीने के बाद, एक सेमेस्टर के बाद तो बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल कुछ लगेगा ही नहीं कि हेक्टिक हो रहा है, एकदम सिंक्रोनाइज हो जाएगा सब कुछ। ओके भैया, थैंक यू। श्योर। नेक्स्ट सुहेल। हेलो, यस सुहेल, यू आर ऑडिबल। भैया मुझे ये पूछना था, जो मतलब जो इंटरव्यू राउंड शुरू होते हैं, कोडिंग राउंड से पहले कोई एप्टीट्यूड राउंड भी होता है क्या? वो कंपनी टू कंपनी मैटर करता है, कोई फिनटेक कंपनी होगी और अगर कोई मतलब बिल्कुल ही प्योर एसडी टाइप की नहीं है तो फिर वो थोड़ा सा एनालिटिक्स और मेंटल एबिलिटी स्किल्स भी चेक करते हैं, बट हर कंपनी का ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ में होता है। लाइक ऐसा हो सकता है कि 2 कोडिंग क्वेश्चंस आ जाए प्लस 5 एमसीक्यूज आ जाए, या फिर हो सकता है 3 सिर्फ डीएसए के क्वेश्चंस आए, एमसीक्यू ना आए, तो कंपनी टू कंपनी मैटर करता है वो। भैया एक और डाउट था, जैसे कोरोना से पहले मतलब जो सॉफ्टवेयर कंपनी जो आती थी उनमें ओपन फॉर ऑल की कंपनी, ओपन फॉर ऑल कैटेगरी कंपनी ज्यादा होती थी ये, या मतलब अभी भी नॉर्मल चल रहा है, जैसे कि अभी कोरोना के टाइम भी प्लेसमेंट हो रही है, उनमें भी ओपन फॉर कंपनी आ रही कि नहीं आ रही? ओपन फॉर ऑल मतलब हर ब्रांचेस के लिए? हाँ भैया, हाँ। अब ऐसा होता है कि कुछ कंपनी का तो होता है कि मतलब एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि हमें सीएस और आईटी के चाहिए, फिर उसमें टीएनपी सेल होता है जो ट्रेनिंग और प्लेसमेंट कराता है, फिर वो एक्सटेंड करवाता है बाकी ब्रांचेस के लिए भी। तो अभी ऐसे मतलब एग्जैक्ट एट द टाइम राइट नाउ बोलना तो ठीक नहीं है कि कौन सी ब्रांच करेगी मैटर और कौन सी कंपनी को नहीं करेगी, क्योंकि वो सबका अलग अलग होता है। अभी ब्रांच कौन सी है? मेरी सर भैया मेरी मैकेनिकल है। अच्छा अच्छा, तो अपना आप टेक के साथ साथ अपनी मैकेनिकल की कोर ब्रांचेस भी एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत सारी कंपनीज आती हैं यहाँ पे, आनंद मोटर्स है और काफी सारी हैं। ओके भैया, ओके। और भैया ये मतलब कोडिंग में पहले सी प्लस प्लस, फिर डीएसए के बाद फिर प्रोजेक्ट पे जाएं या कोच और मतलब अलग से सीखें? सी अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो प्रोजेक्ट मत लो अगर पहले से कोडिंग नहीं आती तो। अभी तो आई वुड प्रेफर कि फर्स्ट सेमेस्टर प्लस, अभी तो जैसे ये है ना कि आपका 6 to 7 मंथ्स में पूरा फर्स्ट ईयर खत्म हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा टाइम है नहीं अभी, है ना, जुलाई से पहले पहले।
तो इस जुलाई तक के टाइम में अभी डीएसए कर लो और साथ के साथ मतलब लैंग्वेज, फर्स्ट ऑफ ऑल द लैंग्वेज, उसके साथ लॉजिक बिल्डिंग की कैसे कैसे क्वेश्चंस को सोचना कैसे होता है कि कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो उसके ऊपर कैसे हम पहुंचेंगे उसके सॉल्यूशन तक, अप्रोच क्या होने वाली है वो चीज। उसके बाद फिर आता है डीएसए जिसमें बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर यूज होते हैं। उसके लिए प्रैक्टिस करो क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब कुछ मतलब पता चलेगा कि क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे है। तो उसके लिए लीड कोड है, कोडशेफ है, ये सारी चीजें। फिर सीपी के ऊपर आओगे तो सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, ये 2 साल पूरा बचा हुआ है, वो डेवलपमेंट प्लस सीपी पूरा उसमें इन्वॉल्व करो। अच्छा भैया, सोसाइटी के अंदर हमें क्या कुछ काम करना होगा या आप हमें सिखाएंगे या कुछ मतलब इंटरेस्टिंग चीज, मतलब क्या क्या होगा सोसाइटी के अंदर? अच्छा, इससे रिलेटेड ये है कि सोसाइटी में एक तो टेक्निकल सोसाइटी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कोडिंग में तो बहुत ही हेल्प करेगी। लाइक वी हेल्ड सम टीचिंग सेशंस एज वेल एज कॉन्टेस्ट हमारे बाई वीकली भी होते हैं, कभी कभी मंथली भी होते हैं। और टीचिंग सेशंस में गाइड किया जाएगा पूरा, वो एक टॉपिक लेते हैं फिर उसको पढ़ाते हैं। जैसे आपने यूट्यूब में देखा होगा कोडशेफ के जो फ्री सेशंस होते हैं वैसे ही होता है। उसके बाद इससे हटके थोड़ा टेक्निकल से हटके थोड़ा मैनेजमेंट पार्ट भी है। लाइक आपसे आपके जो जूनियर्स आएंगे नेक्स्ट ईयर या फिर उससे नेक्स्ट ईयर, उनकी रिक्रूटमेंट। उसके साथ फिर थोड़ा सा मैनेजमेंट वर्क होता है, जैसे मीडिया डिपार्टमेंट है जो कि आपके पोस्टर्स और पूरा हैंडल करती है, सोशल मीडिया जितना भी हैंडल है। उसके बाद आपके टीचिंग सेशंस में लाइक यू कैन बी पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, लाइक यू आर गोइंग टू अरेंज दी लेक्चरर्स कि हाँ आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमारे सोसाइटी में आइए टीचिंग सेशन के लिए, और ये सब चीजें। तो टेक्निकल प्लस मैनेजमेंट दोनों के लिए हम रिक्रूटमेंट करते हैं। ओके भैया, थैंक यू भैया। आई थिंक और ज्यादा डाउट्स नहीं दिख रहे, सो रैप अप करते हैं। ओके, किसी को और डाउट हो तो हम एक फॉर्म भी भेजने वाले हैं जिस पर आप डाउट्स पूछ सकते हो। उसके बाद फिर हम क्योंकि अगर बहुत ज्यादा डाउट्स आ गए तो हम पर्सनली आंसर नहीं कर पाएंगे, हम एक FAQs फॉर्म निकाल देंगे जिसमें हम सर जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं हम उनके आंसर दे देंगे। किसी को और कुछ डाउट हो अगर स्पेसिफिकली अभी तो हैंड रेज कर लो, नहीं तो फॉर्म्स में पूछ सकते हो। शिवेंद्र, यू कैन आस्क। शिवेंद्र प्रताप सिंह। Okay, I think हो गया. Let's wrap it up. Thank you everyone for attending this session. अगर वो डाउट्स का तो बता ही दिया, एंड जस्ट स्टे ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप्स, बाकी इन्फॉर्मेशन उस पर आती रहेगी, बाकी इवेंट्स के भी इन्फॉर्मेशन सारी उस पर आती रहेगी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग. यू कैन लीव नाउ.